تھوڑی دیر میں ذرا ایک اچھا ویری گڈ یار. میں اگر انکنوینئنٹ ہے تو آپ گھر سے بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں ادھر سے بھی لے رہا ہوں, پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. چلے گڈ گریٹ. اوکے ویلکم ناصر. ہلو ناصر, آن لائن آ کر سو گئے کیا؟ اچھا آفس, آج آفس ہو گیا, ٹھیک ہے اوکے. جناب اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اومنی چینل آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ اومنی چینل کسی ایک طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوتا, کئی طریقے سے ڈیزائن ہو سکتا ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے, کسٹمرز کی نیچر کیا ہے, پروڈکٹ کی ویلیو کیا ہے, کسٹمر اسپریڈ ہیں یا کسٹمر بہت ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں. اس لحاظ سے آپ اومنی چینل ڈیزائن. اومنی چینل یہ ہے کہ آپ ایک ہی ویئر ہاؤس سے ریٹیل کسٹمرز کو بھی فلفل کر رہے ہیں اور آپ اپنے آن لائن کسٹمرز کو بھی فلفل کر رہے ہیں. اس سے ایفیشینسی بھی آتی ہے, زیادہ بہتر اسارٹمنٹ مل جاتی ہے آپ کے کسٹمرز کو. اگر آپ 2 ویئر ہاؤس رکھیں گے, ایک میں کوئی چیز کم ہوگی, ایک میں کوئی چیز زیادہ ہوگی, تو وہ بہتر نہیں ہے. 1 ویئر ہاؤس سے آپ کی ایفیشینسی بھی بہتر ہوتی ہے, اسارٹمنٹ بھی بہتر ہوتی ہے, کسٹمر کے لیے چوائس بھی بہتر. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ انٹیگریٹڈ فلفلمنٹ ہے. سب سے پہلا نام جو دیا انہوں نے انٹیگریٹڈ فلفلمنٹ. انٹیگریٹڈ فلفلمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ریٹیل کا ایک انہوں نے ڈیلیوری سینٹر بنایا ہوا ہے, یعنی یہاں پہ سارا مال آتا ہے کہ یہاں سے ریٹیل میں جائے. جیسے گل احمد نے بنایا ہوگا کوئی ریٹیل ڈیلیوری سینٹر, وہاں پہ سارا جو کچھ بھی ان کا فنش گڈس بنتا ہوگا وہاں پہ ریٹیل ڈیلیوری میں چلا جاتا ہوگا, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیسے کر رہے ہیں دیکھیں آپ, اسٹور کو جا رہا ہے ٹرک لوڈ یا لیس دین ٹرک لوڈ, دونوں جا رہے ہیں. اگر اسٹور کی ریکوائرمنٹ کم ہے تو لیس دین ٹرک لوڈ بھی بھیجتے ہیں. لیس دین ٹرک لوڈ اسٹور کے لیے ایکسپینسو پڑتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن اس کی کاسٹ پوری لیتا ہے تقریباً. تو پریفرنس ٹرک لوڈ کی ہے, ٹرک لوڈ نہیں ہے, اسٹور چھوٹا ہوتا ہے تو لیس دین ٹرک لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ. اور اگر کسی کسٹمر نے آپ کو آرڈر کیا ہے تو ڈائریکٹ وہیں سے ریٹیل ڈیلیوری سینٹر سے جا رہا ہے کسٹمر کو ڈائریکٹ. تو یہ انٹیگریٹڈ فلفلمنٹ اس لیے ہے, ایک ہی ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے, اس سے کنزیومر کو فلفل کیا جا رہا ہے. ڈیڈیکیٹڈ تو انہوں نے کس طرح کیا فلفلمنٹ, یہ اب دوسرے انہوں نے اس کو ماڈیفائی کیا. ڈیڈیکیٹڈ فلفلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر کے لیے ویئر ہاؤس الگ کر دیا اور اسٹور کے لیے الگ کر دیا. اگر کوئی آن لائن سے آرڈر کر رہا ہے تو ڈائریکٹ فلفلمنٹ سینٹر سے دے دیتے ہیں, اور اگر کوئی اسٹور سے آرڈر کر رہا ہے تو اسٹور کو دے دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ فاسٹ موونگ گڈس ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ گڈس ہوتے ہیں, تو وہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. اسٹور کے لیے الگ فلفلمنٹ سینٹر ہے اور جو کنزیومر ہے ان کے لیے الگ فلفلمنٹ سینٹر ہے, جس کو ڈیلیوری سینٹر کہہ رہے ہیں, ڈی سی. ٹھیک ہے. اسٹور کے لیے اگین وہ ٹرک لوڈ اور لیس دین ٹرک لوڈ ہے. پھر پول ڈسٹریبیوشن. پول ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے کہ دیکھو وال مارٹ ایک بہت بڑا ریٹیلر ہے, جائنٹ ریٹیلر ہے. ان کے پاس ہر روز ایک بڑا ٹرک جاتا ہے ریٹیل آؤٹ لیٹ پر, ٹھیک ہے, اس میں مختلف آئٹم, بیکاز ان کا آؤٹ فلو بھی ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو چھوٹے ریٹیلرز ہوتے ہیں یہ ان کے پاس فل ٹرک لوڈ نہیں جا سکتا, پلس یہ بارگین کرنے کے معاملے میں بھی کمزور ہوتے ہیں. یہ یونیلیور یا پی این جی سے بارگین نہیں کر سکتے جس طرح سے امتیاز کر سکتا ہے. امتیاز بارگین کرتا ہے اور وہ آپ کو پاس آن بھی کرتا ہے. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, ریٹیلرز ایک پول بنا لیتے ہیں. 25-30 گلشن اقبال کے ریٹیلر جو قریب قریب ہیں وہ مل کر کے ایک پول بنا لیتے ہیں. اب ان کی ریکوائرمنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹرک لوڈ کے برابر. پھر وہ مینوفیکچرر سے نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وی آر ٹیکنگ فل ٹرک لوڈ, تو فل ٹرک لوڈ کا جو ڈسکاؤنٹ آپ امتیاز کو دیتے ہیں یا دوسروں کو دیتے ہیں وہ ہمیں بھی دیں آپ. تو اس طرح وہ پول ڈسٹریبیوشن کر لیتے ہیں. پول ڈسٹریبیوشن میں کیا ہوتا ہے, تمام ریٹیلر کا ایک ہی ڈیلیوری سینٹر میں آتا ہے مال, پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے پارٹی کے پیکٹ میں تھرڈ فل ٹرک لوڈ یا لیس دین ٹرک لوڈ کے ذریعے یا تو تھرڈ پارٹی کو جاتا ہے, وہاں سے اسٹور کو جاتا ہے, یا ڈائریکٹ اسٹور کو جاتا ہے. جیسے پنجاب سے یا سرحد سے رائس آتے ہیں, کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو مختلف شہروں میں آتے ہیں,
जैसे हैदराबाद में और इधर में 10 बोरियां हैं, हाँ वहाँ को उतर गया, फिर बीच में नूरियाबाद में 20 किसी की बोरियां हैं, वो उतर गई, बीच बीच शहर में बिल्कुल। चलता रहता है, और हर कोई अपना हर एक को अपना माल, तो वो वहाँ से तो फुल ट्रक लोड चलता है, फुल चलता है। लेकिन यहाँ पे रिटेलर अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेते हैं, तो दैट बिकम्स लेस कॉस्टली। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब जो बड़े स्टोर होते हैं वो डायरेक्ट स्टोर को भी डिलीवर कर सकते हैं। वो सप्लायर का डिलीवरी सेंटर है, वहाँ से डायरेक्ट स्टोर को जा रहा है, तो लेस देन ट्रक लोड ही होता है आमतौर पे, क्योंकि स्टोर इतने बड़े नहीं होते। ठीक है। अच्छा, स्टोर फुलफिलमेंट क्या होता है? स्टोर फिल आप स्टोर को फुलफिल कर देते हैं, यानी जो कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया है वो स्टोर तक चला जाता है और कस्टमर को फ़ोन किया जाता है वहाँ से पिक कर ले। जैसे जुनैद जमशेद में आप गए, आपके साइज़ का शलवार कमीज़ नहीं था या आपके कलर का शलवार कमीज़ नहीं था, आपने कहा मुझे ये कलर चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है आप अपना ऑर्डर बुक कर दीजिए, व्हेन इट विल अराइव यू कैन पिक अप। तो जब आ जाएगा वो आपको फ़ोन करेंगे, आप वहाँ से पिक कर लें। तो ये डिलीवरी भी हो सकती है और पिकअप भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके नहीं जनाब मुझे घर पे दें आप, तो देन दे विल चार्ज एक्स्ट्रा डिलीवरी कॉस्ट। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिलीवरी भी है और पिकअप की पॉसिबिलिटी। अभी आपने डिज़ाइन करना है, आपका प्रोडक्ट किस किस्म का है, आपके कस्टमर किस किस्म के, उसके हिसाब से आपने इनमें से कोई अपने स्टोर के लिए, अपने बिजनेस के लिए डिज़ाइन करना है। अच्छा, डिलीवरी के साथ पिकअप का भी ऑप्शन देता है, पिकअप पे थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। राइट, कि आप जाके ऑर्डर पिकअप दे दिया, अब आपके पास ड्यूरेशन है, आप वहीं से गुजर रहे हैं, आप जाते हो तो ऑर्डर कंप्लीट तो आप उसको खुद पिक कर सकते हैं। तो ओके, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आप क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि कस्टमर्स के पास ऑप्शन हो। कस्टमर के पास ऑप्शन होते हैं तो वो कन्वीनियंट होता है उनके लिए। लो होती है कि आप अगर कहेंगे तो उसको 250 चार्ज करेंगे, तो वो उसके लिए फिर सूटेबल नहीं होता, तो वो कस्टमर कहता है आई पे कहता, तो आप कस्टमर को ऑप्शन दे दें। आप बिल्कुल इनमें से कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बना लें अपने लिहाज से, ये तो आपकी इनोवेशन है, बिल्कुल बना सकते। ठीक है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं है? इस तरह से तुमने डिज़ाइन में लगोगी तो तुमको बोलेंगे भाई हमारा वेयर हाउस डिज़ाइन करो, डिसाइड करो कौन कौन से जो आइडियाज़ हैं उनको कहाँ से स्टोर डिलीवर किया जाएगा, कब कब डिलीवर किया जाएगा। तो वो एफिशिएंट होना ज़रूरी है। पता चला आपके ट्रक की ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है या वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो तो फिर मैनेजर आपसे पूछेगा जनाब ये आप कैसे मैनेज कर रही हैं जी। और कॉस्ट को तो कंट्रोल करना खास सप्लाई चेन का काम है। तो ये भी तकरीबन फ्लो थ्रू फुलफिलमेंट, स्टोर फुलफिलमेंट तकरीबन एक ही जैसा है, बस फ्लो थ्रू फुलफिलमेंट में ये होता है कि प्रोडक्ट के फ्लो को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट किस तरह फ्लो कर रहे हैं, और रिटेल डिलीवरी सेंटर से वो स्टोर है, स्टोर से वो डायरेक्ट डिलीवरी भी हो सकती है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर पिकअप भी कर सकता है। ठीक है, ओके। इंटीग्रेटेड फुलफिलमेंट में क्या होता है, जो कि बेसिकली इस चैप्टर में आपको खासतौर पे फोकस किया गया है, वो ये है कि इंटीग्रेटेड फुलफिलमेंट जो एक्चुअली मैं बता रहा था कि जिस तरह से आप ओमनी चैनल को आमतौर पे मैनेज करते हैं वो ये है, या आपका एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आप रिटेल स्टोर को भी दे रहे हैं और कंज्यूमर को भी दे रहे हैं। तो वो इंटीग्रेटेड फुल तो सबसे पहले वाला मॉडल था वो यही है। अब ये यहाँ से आप लोग ड्राइंग्स देख के मजीद समझना चाहें तो समझ जाइए, फुल डिस्ट्रीब्यूशन है, मुख्तलिफ स्टोर्स को जा रहे हैं, इसको उन्होंने मजीद डायरेक्ट ड्राइंग बता दिया आपको। चलिए, हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। लेकिन एक चीज जिस तरीके से सर मार्केटिंग मैनेजमेंट में था, उसमें मतलब प्रोसेस को समझाया गया था। अब सप्लाई पे थोड़ा खास जा रहा है, वो फ्लो चार्ट्स बने, मतलब इतना दिमाग में जगह नहीं है कि ये फ्लो चार्ट्स का फ्लो याद रखे कि हाँ कहाँ पे क्या है। आपसे कौन कह रहा है कि आप याद रखें? मतलब ऐसा वाला समवन आस्किंग कि आप याद रखें? बहुत इजी आदमी हूँ,
बस सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोगों ने मेरा लेक्चर सुनाओ, मेरी वीडियोस देखी हो और एक दफ़ा स्लाइड से गो थ्रू किया हो, ठीक है? क्योंकि जब तुम लोगों के दुकान में ये चीज़ें पड़ जाती हैं ना, जब अप्लाई करने के बाद आएगा तो इंशाल्लाह तुम्हें याद आ जाएगा कि ऐसा कोई लफ्ज़ मैंने सुना था। वो फिर तुम किताब खोल के देखोगे या मॉडल्स देखोगे या गूगल करोगे, आपको अगर बिल्कुल ही आप इसके साथ ताल्लुक नहीं है आपका तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। अब थोड़ा बहुत आप हटाए देना, इट्स ओके। अच्छा जनाब, अब आ जाइए चैप्टर 5 सोर्सिंग। सोर्सिंग क्या होती है कि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपने क्रिटिकल आइटम्स, नॉन क्रिटिकल आइटम्स सारे सोर्स करने होते हैं, यानी किसी सप्लायर से परचेज करने होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोर्सिंग। पहले सोर्सिंग के मेथड सिंपल होते थे, अब सोर्सिंग के मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो गए। पहले सोर्सिंग के लिए सप्लायर्स कुछ होते थे, अब कई होते हैं। बाद आइटम्स आप ऐसी जगह से सोर्स कर रहे होते हैं जिसका एक ही सप्लायर है और कोई सप्लायर ही नहीं है उसका, ठीक है? बाद जगह पे आप जहाँ से सोर्स कर रहे होते हैं वो बहुत फार अवे एरिया है। अब आपको वहाँ के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के चीज़ों के ट्रांजैक्शन के मेथड्स जी, ये मोनोपोली सोर्स है जी, बिल्कुल। ये हमने खुद उनको तोहफे में दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन हो जी, बिल्कुल है। तो सोर्सिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे गैस की लोड शेडिंग हो रही है कि हम गैस को प्रॉपर तरीके से सोर्स नहीं कर पा रहे। और जो हमारे एग्रीमेंट्स थे पहले कतर के साथ, वो गवर्नमेंट ने कैंसिल करके दूसरे एग्रीमेंट्स किए कि ये एग्रीमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव थे। तो अब जो नए एग्रीमेंट्स किए हैं उससे उनको गैस ही नहीं मिल रही है। या पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ गई है, जब गैस की डिमांड बढ़ जाए और आप प्राइस सही नहीं दे रहे हैं तो वो उनको देंगे जो सही प्राइस दे रहे हैं, या और दूसरी प्रैक्टिकल मैनेजमेंट चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो यू आर नॉट गेटिंग गैस। पाकिस्तान बड़ा अजीब सा मुल्क है, एक चीज़ की डिमांड है, पब्लिक उसके पैसे देने के लिए तैयार है, एंड दैट प्रोडक्ट में नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, ये मिसमैनेजमेंट की बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है। बट दिस यू कैन नॉट डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करेंगे तो आप अगर सोर्सिंग मैनेजर हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं, तो आपको निकाल बाहर किया जाएगा। एक दिन के लिए नेशनल रिफाइनरी बंद हो जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है कि जनाब उनके पास क्रूड ऑयल नहीं है इसलिए रिफाइनरी बंद हो गई। फिर जो है उनसे पूछा जाएगा भाई क्या, आपने देखा था कि पेट्रोलियम की शॉर्टेज हुई थी अभी रिसेंट पास्ट में, ऑलमोस्ट अ ईयर। तो पीएसए ने शॉर्टेज को ओवरकम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो दूसरी कंपनीज थी शेल और दूसरे, उन्होंने अपने ऊपर ये ऑब्लिगेशन फील नहीं की, बल्कि उन्होंने स्टोर करके लेटर ऑन दे सोल्ड एट हायर प्राइस। तो आप जब सोर्सिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ नहीं करते हैं, योर ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू प्रॉब्लम इतने सीवियर है कि जस्ट आप कैलकुलेट कीजिए कि एक दिन के लिए अगर नेशनल रिफाइनरी बंद हो जाए तो उनके प्रॉफिट का कितना लॉस होगा, प्लस उनको ह्यूमन रिसोर्स को पे करना पड़ रहा है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, रेंट्स पे करने हैं, जिसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा। एंड इट में प्रोलॉन्ग, अभी ऐसा भी हो सकता है कि एक हफ्ते के लिए हो जाए। जैसे पहले ये होता था पहले कि वो घर के लोगों को अगर गैस देते थे घरेलू सार्फिन को, तो सीएनजी स्टेशन सफ़र करते थे। अब सीएनजी स्टेशन सफ़र करते हैं तो दैट टू इज़ ए लॉस ऑफ बिजनेस। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐसे सोर्सिंग कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन को के मटेरियल मिल रहा है, और ऑल मटेरियल्स आर इम्पॉर्टेंट। बस ये है कि कुछ मटेरियल्स की सोर्सिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है कि उसकी सप्लाई लाइन कभी डिसकंटिन्यू नहीं हो। कुछ मटेरियल के बाद ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से ले लेंगे, तो यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट। तो ये आप चूँकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, अब सारे आइटम्स पे अगर आप फोकस करेंगे देन यू आर नॉट फोकस्ड। इसलिए सोर्सिंग में हम आपको बताएंगे कि आइटम्स में कितने आइटम्स पे फोकस करना है, ज़्यादा करना है, किस पे काम करना है, और सोर्सिंग को आप कैसे मैनेज करेंगे। परचेज मैनेजर की जॉब बड़ी लिक्रेटिव होती है। मुकेश साहब ने कल बताया था ना, उनके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है प्रोक्योरमेंट वाले, क्योंकि प्रोक्योरमेंट इज़ ए वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड किस्म के रिलेशनशिप, नेगोशिएशन स्किल्स, सप्लाई, हमको
KPIs डेवलप करना, अकॉर्डिंगली उनको रिवॉर्ड करना या पनिश करना, चेंज करना, कंटिन्यू करना, एग्रीमेंट साइन करना, ये सब बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम है। सर सीईओ कहते थे कि आपको जो ओवर टाइम मिलता है हाँ वो इक्विपमेंट या सप्लाई चेन की वजह से मिलता है, क्योंकि 1 रुपया अगर एक प्रोडक्ट को कम करता है, हाँ हम 10 लाख ले रहे हैं, 10 लाख रुपए बचे, हाँ 10 लाख हो गया, ओवर टाइम में क्यों हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। सोर्स है ना, ये है सप्लाई चेन। सबसे ज़्यादा जो आपके बचत का सोर्स है वो सप्लाई चेन ही है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसीलिए फोकस भी आजकल सप्लाई चेन। अच्छा जनाब, तो ये आ जाइए आप, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि परचेजिंग क्या है, प्रोक्योरमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग क्या है, 3 डिफरेंट तरीके से एक ही बात को अब डिस्कस किया गया। परचेजिंग सिंपली ट्रांजैक्शन होती है, जैसे मैं जाता हूँ रिटेल स्टोर पे, लक्स खरीद लिया, दैट इज परचेज, और उसको मैं पूरा प्लान करके खरीदूँ तो वो प्रोक्योरमेंट है, और स्ट्रेटेजिकली उसको मैनेज करूँ कि मैं इस तरह से खरीदूँ कि वो मोस्ट अपॉर्चुन टाइम में, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में और राइट क्वांटिटी में मिल जाए, और अच्छे बेहतरीन सोर्स से मिल जाए, लोएस्ट प्राइस पे मिल जाए, तो दैट इज स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, तीनों भी परचेजिंग है, लेकिन आजकल बेसिकली जो जिस चीज़ पे फोकस है दैट इज स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। और ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग आप सिर्फ फ्यू आइटम्स के करते हैं, क्रिटिकल आइटम्स के करते हैं, आप सारे आइटम्स की स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप आइटम्स की स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, सोर्सिंग का प्रोसेस डेवलप कैसे हुआ ये भी थोड़ा सा ये बताएंगे। फिर ये क्वाड्रेंट बना के इसमें बताया है कि भाई आप सोर्सिंग में किन आइटम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कौन सा आइटम क्रिटिकल है, कौन सा नॉन क्रिटिकल है, तो ये आप देखेंगे। अच्छा, प्रोसेस क्या है वो डिस्कस। फिर लैंडेड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और ये सेल्स में भी यूज होता है। मिसाल के तौर पे मैं ये OHP बेच रहा हूँ, ठीक है, सोनी का ये फर्ज कीजिए कि 1 लाख रुपए का, दूसरा OHP आके बेच रहा है वो 60,000 का। तो पहले परचेज वाले कहते थे कि ये 60,000 का, 100,000 का है, तो वी विल परचेज इन 60,000, सस्ता है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट आ गया टोटल लैंडेड कॉस्ट का, तो भाई ला कर इंस्टॉल करने में कितना पैसा खर्च होगा, यूज़ करने में कितना आसान है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितना खर्चा होगा, ये कितने साल में ख़त्म हो जाएगा। फर्ज़ कीजिए कि जो 60,000 वाला है वो 3 इयर्स में ख़त्म हो जाएगा, जो मैं 100,000 में बेच रहा हूँ वो 6 इयर्स तक चलेगा, उसकी प्राइस तो वैसे ही जस्टिफाई हो गई, और अगर उसकी मेंटेनेंस वगैरह का। अब वो देखते हैं कि टोटल लैंडेड कॉस्ट क्या है उस चीज़ की, पूरे लाइफ साइकिल कॉस्ट। एक तो ये कि आ करके कितनी कॉस्ट पड़ेगी, फिर उसकी पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है। बहुत सारी चीज़ें अपफ्रंट महंगी होती हैं लेकिन उनकी लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होती है। जैसे मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था, बहुत अच्छा जनरल इलेक्ट्रिक का, तो बहुत अरसे से चल रहा है हमारे पास, उसको कोई इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इट वॉज एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, लेकिन उसकी जो टोटल ओनरशिप की कॉस्ट है वो कम है। तो ये देखते हैं हम कि भाई टोटल, जैसे आजकल लोग घर में सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, दिस इज़ वन टाइम कॉस्ट, बट वो कहते हैं कि इसका हमारे 4 इयर्स में पे बैक मिल जाता है, जबकि इसकी 10 इयर्स की गारंटी वारंटी है। दैट्स वाई पीपल आर शिफ्टिंग ऑन दैट। वन टाइम इट इज़ एक्सपेंसिव, आपको 2 मिलियन देने पड़ते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू प्राची इलेक्ट्रिक। तो ये टोटल लैंडेड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर सारे कॉस्ट देखे जाते हैं। जो हिडन कॉस्ट है, आइसबर्ग भी बना के दिखाएंगे कि आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग को डिसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि टोटल साइज ऑफ द आइसबर्ग को डिसाइड करना चाहिए। फिर ई सोर्सिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई कॉमर्स के अब नए नए तरीके निकल आए हैं, तो उसको कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग है ये ना। तो ये सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का, जब भी आप किसी चीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक लगा देते हैं, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, इस ये है कि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव या बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन है। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन होती है, अंडरस्टैंड। यानी आपने कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है लो कॉस्ट, तो आपने लो कॉस्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है, तो आपकी सारी सोर्सिंग उसके साथ अलाइन हो। आप सप्लायर वाले ढूंढेंगे, आप प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट वाले ढूंढेंगे, ताकि ओवरऑल लो कॉस्ट के साथ अलाइन हो सके। दैट इज स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग,
when your sourcing is aligned with the top level objective, with the objective of the organization. अब procurement basically एक process है, एक का प्रोसेस है. पहले तो ये होता है ट्रांजैक्शनल होता है, परचेजिंग जिसको कहते हैं. परचेजिंग क्या है? ट्रांजैक्शनल है. आप परचेजर को फोन कर, आप सप्लायर को फोन करते हैं, भाई ये मुझे 1000 आइटम खरीदना है, कितनी प्राइस है? कहता है भाई 10 रुपये पर आइटम दूंगा. कहते हैं बहुत महंगा है, कम करो. सर 9.5 कर दूंगा. नहीं ऐसा करो 8.5 में भेज दो. सर 9 कर लें, तो 9 पे तय लोग आप भेज दिया. तो ये क्या है? ठीक है. अब प्रोक्योर करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, सो दैट आपको बार बार एक ही एक्सरसाइज ना करनी पड़े. अगर आपको एक अच्छा सप्लायर मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी देता है, कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी क्वालिटी देता है, कोई भी परफेक्ट क्वालिटी नहीं देगा, उसके माल में खराबियां भी आएंगी. वो अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ रीजनेबली अच्छी क्वालिटी देता है, प्राइस भी कम है, सर्विस भी अच्छी देता है, और जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो भागता नहीं है बल्कि आके खड़ा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें उसकी रिलायबिलिटी में इजाफा करती हैं. तो आप जब ये सारे क्राइटेरिया के ऊपर किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आजकल शॉर्ट लिस्टिंग का फैशन है, जब एक दफ़ा आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो आप फिर उन्हीं को कोटेशन भेजते हैं, सबको नहीं भेजते कि आप इनलिस्टमेंट हो गए, इनलिस्ट हो गए, अब उस आइटम की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ही को वो भेजेंगे. शॉर्ट लिस्टिंग इसीलिए की जाती है कि हर दफ़ा उनको लेंथी, टाइम कंज्यूमर और कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस ना करना पड़े. और आपने कोई आइटम मांगा, 150 लोगों ने आपको कोट, अब उन सबको एनालाइज करना है, इवेलुएट करना, कंपेयर करना, उनकी रिलायबिलिटी चेक करना है. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, रिसोर्स कंज्यूमिंग एंड इट कॉस्ट यू. तो इसलिए जो है वो प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के अंदर आप सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और उनको रैंक कर लेते हैं कि ये टाइप सप्लायर है, ये बी टाइप सप्लायर है, ये सी टाइप सप्लायर है. ए से हम 80% परचेज करेंगे, बी से हम 15% परचेज करेंगे, सी से 5% परचेज करेंगे. इस तरह आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं और आप जो अच्छा सप्लायर है उसको आप रिवॉर्ड भी कर लें, और बी के लिए इंसेंटिव है कि वो अच्छा सप्लाई करके एक कैटेगरी में आने की कोशिश करें. ये जो पूरा सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज प्रोक्योरमेंट. परचेजिंग इज बेसिकली ट्रांजैक्शनल. आइए. अरे वालेकुम हरीम, कैसे हैं आप? खैरियत से आप? ये मुझे एक बात बताइए, लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है? पूरी जगह खाली होगी, ढूंढ के देखेंगे लड़की किधर है, उसके साथ जाके बैठ देंगे. क्या वजह है उसकी? अच्छा, नहीं यहाँ भी बैठ सकती थी ऐसे तो. चलो खैर नहीं, ये कुछ लड़कियों की साइकी का मसला. चलो ठीक है भाई, तुम खुश रहो, लड़कियां खुश रहे, यही हमारे लिए गनीमत है. क्या ख्याल है? अच्छा जनाब, तो अब आ जाइए यूनिक एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग. यानी स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में किन चीज़ों पे तवज्जो दी जाती है? सबसे पहली जो तवज्जो दी जाती है कि आप अपने परचेजिंग पावर को लेवरेज करते हैं, यानी परचेजिंग पावर का एडवांटेज लेते हैं और अपने सप्लायर से पेमेंट नहीं करते या वन टाइम परचेज नहीं करते कि वन टाइम परचेज पे सप्लायर आपको इतना डिस्काउंट नहीं देगा. लेकिन अगर आप सप्लायर को ब्लैंकेट ऑर्डर देते हैं, ब्लैंकेट ऑर्डर का मतलब है वन टाइम आप कह देते हैं कि भाई 10 ईयर्स की 10 ईयर्स की जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो परचेज फ्रॉम यू. अब सप्लायर भी उसे प्लान कर सकता है, उसमें कॉस्ट कटिंग कर सकता है, उसके मुताबिक एम्प्लॉइज हायर कर सकता है, उस मुताबिक मशीनें लगा सकता है और अपने सप्लायर्स को अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकता है. Now supplier will be in a position to pass on the benefit. तो ये बेसिकली परचेजिंग पावर की लिवरेजिंग है. जब एक ही सप्लायर के साथ आप कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं, उसको अपग्रेड भी करते हैं, उसको बिजनेस भी देते हैं, उसको नर्चर भी करते हैं, उसको ट्रेन भी करते हैं, तो फिर वो बेनिफिट आपको रियल मीनिंग में पास ऑन होता है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी परचेजिंग पावर को लिवरेज करें, यानी उसका एडवांटेज है. और फिर उसके बाद जो एम्फेसिस है वो है वैल्यू. वैल्यू से मुराद ये है कि हम अगर इस सप्लायर से लेते हैं तो हमें टोटल वैल्यू क्या मिलती है, और इस सप्लायर से लेने से हम कोई चीज़ प्रोडक्ट लेते हैं तो टोटल वैल्यू हमें क्या मिलती है. वैल्यू का क्या मतलब है? ये देखिए, आप मिसाल के तौर पे कोई किसी सप्लायर से आप एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं, आप ये 40,000 का दे रहे हैं, ये 50,000 का दे रहे हैं, ये 60,000 रुपये आपने कहा, ये 40,000 का दे रहा है. अगर एयर कंडीशनर खरीदना इनफ नहीं है, यू हैव टू इंस्टॉल इट. और अगर आप
इंजीनियर माइंड सेट के, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर जगहों पे इंस्टॉल होना चाहिए। ये नहीं कर सकते दोनों एसी एक साथ लगा दें, उससे कूलिंग इफेक्टिव नहीं होगी। फिर इंस्टॉलेशन चाहिए, फिर आपको मंथली सर्विसेज भी चाहिए, क्योंकि आप तो किसी और बिजनेस में, आप अगर एयर कंडीशनर को रिपेयर मेंटेनेंस में लग जाएंगे, देन योर मेन कोर बिजनेस विल सफर। मंथली आपको सर्विस भी चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए। जिला 40,000 वाले ने आपको जो एयर कंडीशनर दिया वो सबसे ऑब्सोलीट होने वाला डिज़ाइन है, ऑब्सोलीट हो गया, अब उसके बाद उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। उसने तो अपना क्लियर करना था, क्लियर कर दिया, अब नाउ यू विल सफ़र। उसके बजाय आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई हमारी एसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आप प्रोवाइड करेंगे, एनुअल मेंटेनेंस भी आप देंगे, इंस्टॉलेशन भी आप करेंगे, और अगर कोई चेंज आ रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर आजकल इन्वर्टर वाले एसी आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड भी करेंगे। तो क्या है, ये आपको पूरा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, राइट? हाँ भाई नासिर, कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो हो सकता है कि आप डिसाइड करें कि मैं 50,000 वाले से परचेज करूं। अपफ्रंट एक्सपेंसिव है, लेकिन उसकी सारी सर्विसेज के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर वैल्यू दे रहा है। भाई आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के 3,000 रुपये का खाना क्यों खाते हैं? आप 150 रुपीज़ की बिरयानी से भी तो पेट भर सकते हैं, पेट भर जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मिल रही है विच यू नीड, गुड एम्बियंस, गुड सर्विस, गुड टेस्ट, गुड क्वालिटी, ठीक है, एंजॉइंग टाइम विद फैमिली, तो फिर आप उस वजह से वहाँ पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर देते, बिकॉज आप समझते हैं कि मुझे ये वैल्यू मिल रही है। तो असल जो एम्फेसिस है वो कॉस्ट पे नहीं है बल्कि वैल्यू पे है। व्हाट वैल्यू आई एम गेटिंग इन रिटर्न। आप चीज़ें भी उसी वक्त खरीदते हैं जब आपको लगता है कि यार ये शर्ट 2,000 रुपये की है, तो ये तो बड़ी अच्छी शर्ट है, कहीं और से खरीदने जाऊँगा तो 2,500 3,000 से कम भी नहीं मिलेगी। आप समझ रहे वैल्यू है कि मैं इसको इतने परचेज में परचेज करूँ, तो ये परचेज, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट वैल्यू का। वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है कि हमारे ध्यान में कॉन्सेप्ट रहता है लोएस्ट कॉस्ट। तो जो चीज़ लोएस्ट कॉस्ट में मिल रही है वो खरीद लो। अब लोएस्ट कॉस्ट वाली चीज़, मुकीद साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत है? देखो ये जो सबसे पहली हल्दी कुर्सी अवेलेबल थी उधर आगे बढ़, दैट इज द डिफरेंस आई एम टेलिंग यू। समझे? ये मेरी ख़वातीन के ऊपर जो रिसर्च है वो बहुत गहरी है, समझिए। तो प्रूव हो गया। बहरहाल आप खैरियत से हैं? आपको देख के खुशी होती है मुकीद साहब, माशाल्लाह। चलें, गुड, अच्छा हुआ आप आ गए। तो ये वैल्यू पे एम्फेसाइज करने का ये मतलब। आप जाहिर है कि आप भी मार्केट में जब जाते हैं तो सबसे सस्ती चीज़ नहीं खरीदते अपने घर के लिए, ठीक है। सब्जी भी आप जो है वो आप बिल्कुल सस्ती वाली नहीं खरीदते, जो अच्छी होती है, फ्रेश होती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, आप वो खरीद लेते हैं। फ्रूट, हाँ करते हैं ना आप, क्यों? क्योंकि आप थोड़े ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और आपको वो फिर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो यू आर विलिंग टू पे मोर। तो यू आर इन सर्च ऑफ वैल्यू, नॉट लोएस्ट कॉस्ट। तो ये सोर्सिंग में भी आप हमेशा याद रखिएगा, यू आर इन सर्च ऑफ वैल्यू। ओवरऑल मुझे टोटल सर्विस क्या मिल रही है यहाँ से। और फिर सप्लायर के साथ रिलेशनशिप इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। पहले ही होता था कि सप्लायर के साथ ज़रा दूर दूर रहते थे। अगर कोई ज़्यादा सप्लायर के साथ चाय वाय पीता हुआ पाया जाता था तो लोग कहते थे यार ये आदमी सही नहीं है। तो लोग अपने आप को बचाने के लिए सप्लायर से ज़रा दूर दूर रहते। अब आपसे कहा जाता है नहीं, आप सप्लायर के प्रेमिसेस में जाएं, उनके वर्कर्स के साथ काम करें, उनके साथ खाना खाएं, लंच करें, ताकि रिलेशनशिप डेवलप। जब रिलेशनशिप डेवलप होगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब सप्लायर रिलेशनशिप पे काम हो रहा है, पहले आप उन्हें आर्म्स लेंथ पे रखते थे और सप्लायर्स के साथ ज़्यादा उठना बैठना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं समझी जाती, ठीक है। तो और सब कोड ऑफ एथिक्स डिजाइन होते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आप बताइए आपके यहाँ क्या पॉलिसी है कि आप सप्लायर से कोई गिफ्ट नहीं ले सकते, उसके साथ कोई डिनर नहीं कर सकते,
ٹھیک ہے. اور بعض کمپنیز نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ آپ اگر اسے کوئی گفٹ لیں گے اٹ شوڈ ناٹ بی آف اے ویلیو آف 500 روپیز مور دین 500 روپیز. اس سے زیادہ ویلیو کوئی چیز آپ روپے نہیں لے سکتے. پرائمری میں اکاؤنٹ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میڈیکل پروفیشن میں تو ایسا ہو رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. صرف میڈیکل بھی نہیں ہو رہا ہے, آرکیٹیکٹ میں بھی ہو رہا ہے, سول میں بھی ہو رہا ہے, اور جگہوں ہو رہا ہے کہ میکینیکل ڈیزائن میں بھی ہو رہا ہے. جو آپ ڈیزائن انجینئر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں مینوفیکچررز, پمپ مینوفیکچرر, کمپریسر مینوفیکچررز, والو مینوفیکچررز, اور ان کو اپنے پروڈکٹ کی اپڈیٹ دیتے ہیں اور پھر وہ اسی حساب سے ان چیزوں کو اپنے ڈیزائن میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. جو اچھے انجینئر ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے انکارپوریٹ کرتے ہیں, جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کام بھی ہو سکتا ہے. ایون ٹرپس جو اسپانسر کرتے ہیں اس تک کا مینشن کیا ہوا ہے ایمریٹس ایئر لائن نے اپنے پرائمری کے کلاسز کے اندر کہ پہلے صرف کیش کو پرائمری میں کاؤنٹ کرتے تھے. اب اگر آپ کا سپلائر آپ کو بولے نا سر یہ ٹکٹ پکڑے آپ فیملی کے ساتھ گھوم کر ایون وہ تک وہ بھی پرائمری ہے. اور سپلائر عام طور پہ یہ کرتے ہیں انجینئرس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں جرمنی میں ہمارا جو ہے وہ ایگزیبیشن لگا ہوا ہے, اس میں آپ ہمارا مٹیریل دیکھیں, ہمارے خرچے پہ رکیں, اور پھر آپ یہاں پہ آئیں ہمارے یو ایس میں آپ کو ٹریننگ دی جائے گی اور وہ ٹریننگ اٹینڈ کریں. اسٹے سب کچھ فری ہوتا ہے, ٹکٹ فری ہوتا ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے کہ کہاں پہ برائبری کی لائن شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ اس طرح کا ٹرپ اویل کرے گا وہ اب لائٹ فیل کرے گا کہ وہ پروڈکٹس خریدے. جب میں بھی چونکہ سیلز میں رہا ہوں تو آئی واز کنٹری مینیجر, تو میں بھی اپنے کچھ کسٹمرز کو لے کر کے گیا امریکہ ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹریننگ کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کا الٹا امپیکٹ ہوا. ان لوگوں نے ہم سے خریدنا بالکل ہی بند کر دیا. وجہ اس کی ہے کہ ان انجینئرس کے اوپر اتنا پریشر آیا کہ سب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اس کو چیسٹرڈن والے امریکہ سے گھما کر لائے ہیں, اب یہ سارے چیسٹرڈن ہی خریدے گا. وہ چیسٹرڈن کے علاوہ باقی سارے برانڈ خریدتا تھا, چیسٹرڈن نہیں خریدتا تھا. اتنا پریشر میں آ گیا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو نگیٹیولی بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بالکل. تو سپلائر کے ساتھ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ میننگ فل ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے. غلط ہو رہی ہے تو غلط ہے. آپ سمجھ رہی ہیں, آپ تو ایچ آر میں ہیں نا, کس جگہ پہ؟ ہاں تم تو ایتھوپیا میں, مجھے معلوم ہے. تمہارے پروڈکٹس آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلی کیا ہے. اچھا, ابھی کل میں نے کفلنگس آرڈر کیے, پتہ نہیں کیسے کفلنگس آئیں گے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. نہیں, میں نے اس سے آرڈر کیا ہے, دراز سے. دراز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا, بس اللہ رحم کرے. تو اب وہ بتا دیں کہ میں نے حالانکہ میں خریدتا نہیں آن لائن, اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا یار کفلنگ ایک میرا آرڈر کر دیا. اس نے گیلس بھی آرڈر کر دیا, پتہ نہیں پریکٹیکلی وہ کیسا آئے گا. تو آپ بس صحیح ہوتے ہیں مردوں کی چیزیں اس طرح کی. اچھا, ہم لوگوں کے ساتھ سائز کا مسئلہ ہے. ہماری ٹی شرٹیں ادھر پھنستی ہیں, تو ہمیں جا کر کے پریکٹیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ ٹی شرٹ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. جیسے زلبری صاف منہ پہ کہہ دیتا ہم آپ کے سائز نہیں ہے. سمجھ ہے نا یار, کہ ہمارے سائز کے لوگ کیا کریں بھائی, کہتے ہم بناتے ہی نہیں. آپ کو ریٹرن پالیسی بھی آ گئی کیا؟ آپ مطلب 10 دن 15 دن کا. اچھا, جیسے بہت پالیسی میں آن لائن پرچیزنگ میں ایک چیزیں تھی یہ آ رہی تھی ریٹرن پالیسی کا 10 ڈیز میں 20 ڈیز میں آپ ریٹرن کر سکتے. کاسٹ دینی پڑے گی آپ کو؟ کوئی کاسٹ نہیں. وہ اگر آپ اسی وقت بھی اگر آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ نے دیکھا کہ یار آپ 5 منٹ رہ جائیں اسٹارٹنگ میں انہوں نے ان چیزوں کو لے کر آئے, لیکن بہت کسٹمر سروس کے بہت ایشوز ہیں. دراز تو مینیج نہیں کر پاتے. یہ چیز آئی ہے نا, جیسے یہ چیز آئی ہے کہ بھائی آپ ایک ہیں تو آپ کی دوسری ہے, اس سے اسی بیسس کو سر رکھتے ہوئے انہوں نے پھر ریٹرن پالیسی. ہماری بیگم نے ایک چیز کو آرڈر کیا, وہ کر لیتی ہے آن لائن آرڈر. کوئی انہوں نے 7 فون کر کے پوچھا کہ آپ کو یہ چیز بھیج دیں. ہماری بیگم ہردو کہتی بھائی بھیج تو, انتظار کر رہی. آخری دفعہ تنگ آ گیا, نہیں بھیجو. پھر اگلے دن آ گیا. یہ تو میں نے خود دیکھا. تو ان لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے, مینجمنٹ کے, الائنمنٹ کے ایشوز ہیں. اصل میں یہ لوگ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. ہاں, تو عادت نہیں ہے. 50,000 ای لسٹ پاس میں اچھا,
50,000 के इसलिए मैनेज नहीं कर पा रहे। 50,000 सप्लायर डीलिस्ट किए हैं, पता नहीं कितने कितने मॉडल मौजूद है, उनको मैनेज करना आसान था। चलिए ठीक है। अच्छा, अटेंशन डायरेक्टेड टू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। देखिए, आप अगर एक प्रोसेस से किसी चीज़ को आप कहाँ कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ों में चेंजेस आती हैं। आपको प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए जैसी रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले आप फ़ोन पे परचेज करते थे, अभी प्रोक्योरमेंट करते हैं, प्रोसेस चेंज हुआ ना। तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रोसेसेस चेंज होते हैं, होने चाहिए। जैसे अभी हम दराज का जिक्र कर रहे हैं, तो दराज के प्रॉब्लम्स है, दे नीड टू चेंज देयर प्रोसेस एंड दे नीड टू ट्रेन देयर पीपल सो दैट कस्टमर सर्विस इज सीमलेस। और इसी तरीके से इसके अंदर जो है ऑफकोर्स टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, जो अभी दराज के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जनाब, तो ये यहाँ पे उन्होंने इसको बताया है कि जनाब ट्रेडिशनल सोर्सिंग क्या है, बेसिकली टैक्टिकल सोर्सिंग है। टैक्टिकल सोर्सिंग का मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट भेजी कि हमें 2 मैकेनिकल सील चाहिए, इस डिज़ाइन के चाहिए। तो उन्होंने किसी मैन्युफैक्चरर को फ़ोन कर दिया, उनको डिज़ाइन दिखा दिया, उन्होंने कहा येस वी कैन सप्लाई दिस डिज़ाइन। टैक्टिकल सोर्सिंग। परचेजिंग ने वैल्यू एडिशन नहीं किया, ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम किया परचेजिंग। और फिर उसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सप्लायर्स, वो सर्च भी नहीं करते। आप बरसों से एक सप्लायर से मैकेनिकल सील खरीदते हैं, उसे खरीदते चले आ रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि दुनिया में उससे अच्छी इम्प्रूव डिज़ाइन भी आ गए हैं, सस्ते डिज़ाइन भी आ गए हैं, रोबस्ट डिज़ाइन भी आ गए हैं। तो वो मगर चूँकि ट्रेडिशनली इंजीनियर्स का भी ये माइंडसेट होता है कि मशीन से जो चीज़ निकलती है ना, वो कहते हैं बस यही चीज़ मुझे ला कर दे। बाद औक़ात उसकी वजह से परचेजिंग वाले फंस जाते हैं। अच्छा, प्रोक्योर होता क्या है, कोई कंप्रेसर खरीदते हैं या कोई पंप खरीदते हैं, कोई भी कैपिटल आइटम खरीदते हैं। तो कैपिटल आइटम आप इसलिए खरीदेंगे 10 ईयर्स 20 ईयर्स यूज़ करेंगे, तो उसको आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे खरीदते हैं कि भाई मुझे इस डिज़ाइन का पंप चाहिए। 4 मैन्युफैक्चरर ने आपको पंप कोट किया, सब ने कहा कि वी विल कंप्लाई विद दिस डिज़ाइन जो आप कह रहे हैं। उसमें जो लोएस्ट कॉस्ट का होता है आप उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और वो आप इंस्टॉल करवा लेते हैं या कर लेते हैं। अब जिसने लोएस्ट कॉस्ट पे पंप दिया होगा, आपका क्या ख्याल है कि उसने बेहतरीन बेयरिंग उसमें लगाई होगी, उसमें बेहतरीन मैकेनिकल सील लगाया होगा, उसमें बेहतरीन कपलिंग लगाई होगी, उसमें बेहतरीन मोटर लगाई होगी? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो वो उसने सिर्फ इतनी उस तरह की चीज़ें लगाई होंगी कि वारंटी पीरियड निकल जाए। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि कस्टमर्स को करते हैं। कस्टमर्स को लॉक इन करने का तरीका क्या होता है? जैसे आपको पता है प्रिंटर में होता है, आप प्रिंटर खरीदने जाएं 7,000 8,000 रुपये का 10,000 रुपये का बेहतरीन बॉक्स प्रिंटर का मिल जाता है। आप खुद हैरान होते हैं यार 10,000 का इधर, वो आप खरीद के ले आते हैं। उसके बाद फिर आप ज़िंदगी भर के लिए लॉक इन हो जाते हैं कि 3-3 हज़ार रुपये का कार्ट्रिज खरीद लिया और कोई और कार्ट्रिज, सस्ता कार्ट्रिज उसमें आता नहीं। तो पंप मैन्युफैक्चरर भी यही करते हैं, कंप्रेसर भी यही करते हैं, मैं भी यही करते हैं। पंप का स्टफिंग बॉक्स होता है जिसके अंदर ग्लैंड पैकिंग लगती है, मैकेनिकल सील लगती है। वो स्टफिंग बॉक्स से डिज़ाइन करते हैं, तंग डिज़ाइन करते हैं। हालांकि स्टफिंग बॉक्स को थोड़ा चौड़ा डिज़ाइन करना चाहिए ताकि उसमें कोई भी मैकेनिकल सील फिट हो जाए। ये लोग जानबूझ करके उसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उसमें उनकी ही मैकेनिकल सील फिट हो सके। एक दफ़ा आपने उनसे ख़रीद लिया पंप, तो इंजीनियर्स भी फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। रीज़न इज़ कि वो कोई मॉडिफिकेशन करें और फंस जाए, मॉडिफिकेशन ख़राब साबित हुई, सब इंजीनियर को कहेंगे कि यार उसके अंदर से ये वाली मैकेनिकल सील निकली थी तो तुमने ये नया तजुर्बा किस लिए किया? इसलिए वो भी नहीं करते। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आप एक गलत वेंडर के साथ, गलत प्रोडक्ट के साथ लॉक इन हो जाते हैं। मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अव्वल तो आपको पंप खरीदने के टाइम में ये सोचना चाहिए था कि इसका स्टफिंग बॉक्स का डिज़ाइन कैसा होगा, इसमें बेरिंग्स कौन से लगेंगी, मोटर कौन सी स्पेसिफिकेशन की होगी। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा ये डिफाइन करते हैं भाई इतने आरपीएम का पंप चाहिए, इतना उसका इतना प्रेशर चाहिए, इतना उसका आउटफ्लो होना चाहिए, वो आपको करके दे देते। तो ये चीज़ें जब इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट मिल करके करते हैं तो ये है बेसिकली स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। ठीक है, वो मिल करके काम करते हैं। और फिर इसमें जब आप फील करेंगे भाई एक मैकेनिकल सील फॉर एग्जांपल या एक बेयरिंग बार बार ब्रेक हो जाता है तो समथिंग इज नॉट राइट, यू नीड टू चेंज दैट। तो इंसैनिटी की डेफिनेशन क्या है? पागलपन की।
कि एक काम को आप बार बार करें और आप हर दफा ये एक्सपेक्ट करेंगे इस दफा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। भाई पिछली दफा भी यही रिजल्ट आया था तो इस दफा भी यही रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि जब तक कि आप कोई चीज़ आप चेंज नहीं करेंगे रिजल्ट विल नॉट चेंज, प्रैक्टिकल रूल है। तो इसके लिए सबको मिल करके काम करना पड़ता है, इंजीनियरिंग को, डिज़ाइन को, प्रोक्योरमेंट को। तो भाई ये बार बार परचेज किया जा रहा है, इट कॉस्ट अस, कैन वी डू समथिंग जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो पहले टेक्निकल सोर्सिंग में कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं था। ये बेयरिंग निकली है, सील निकला है, इस तरह की ग्लैंड पैकिंग, बस यही ला के दो, ये ला के दो, ये करते ना। वो क्या है, प्रोक्योरमेंट परचेज वाला बेचारा सुबह उठता है और आकर के चाय पीता है, चाय पी के बाद सब हर जगह पूरे सारे डिपार्टमेंट में घूम करके जाता है, भाई तुम्हें क्या खरीदना है, तुम्हें क्या खरीदना है, सबकी रिक्वायरमेंट पता करके कुछ आइटम तो फ़ोन पे ही ऑर्डर कर देता है, भाई ये दोपहर तक भेज देना या कल तक भेज देना, अवेलेबल नहीं है या कब अवेलेबल है तब भेज देना। बाकी आइटम चला जाता है शेर शाह और ये हमारा जो सदर में मार्केट है, क्या मार्केट, वहाँ पे भी बहुत सारे मैकेनिकल के आइटम्स मिलते हैं, वहाँ से वो होता हुआ आता है शाम तक वो सारे आइटम्स लेकर के आ जाते हैं। ये ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट है, इसकी कोई ज़रूरत। लेकिन उसके अंदर चूंकि वो जो खासतौर पे सेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सेट रोजाना के हिसाब से देख रहा होता है कि भाई आज मेरे 2 लाख रुपए प्रोक्योरमेंट में खर्च हुए, तो 1.5 लाख खर्च हुए थे, एवरेज चल रहा है तो यही हैप्पी। उसको ये नहीं पता कि इस 2 लाख को 1 लाख किया जा सकता है। सर इसी तरीके से जो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ कंप्रेसर की सर्विस, तो एक वेंडर को 15 साल से दिया हुआ सर्विस, 15 साल से उनको दिया। तो मैंने कहा सर आप कंपैरेटिव क्यों नहीं बनाते, इतने मार्केट में आ चुके हैं वेंडर हैं बहुत सारे। क्योंकि सर कुछ वेंडर्स ऐसे भी होते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल राइट कंपनी में काम करता हूँ, जनरेटर में कैटरपिलर में कर रहा हूँ, तो कल मैं अपनी कंपनी आता हूँ, मुझे इसके सारे पार्ट्स आ पता है, ठीक है, मैं बंदा हूँ, वहाँ का छोटी, अब मेरा अपना बिजनेस करने का शौक हुआ, मैं अपना वो कंपनी बनाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें उसको पता होता है, प्रोसेसर कैसे सप्लाई होगी, कहाँ से मिलेगा। तो जब ये डिस्कस किया तो उस पे सप्लाई चेन वालों कहा कि नहीं हमें इस पे नहीं, क्योंकि उनको ये रिस्क था कि हम अगर किसी और वेंडर को बोलेंगे तो हमारे प्रोसीजर बढ़ेगा, फिर नया फॉर्म खोलो, फिर ये चीज खोलो, फिर जरूरत क्या है, एक चीज सही चल रही है उसको छेड़ने की जरूरत क्या है, फिर नया तरीका बताओ उसको, अपनी पॉलिसीज बताओ। तो जब एक दफा प्रैक्टिस हुई, इसको 2 महीने लगे, तो इसे सेविंग का कॉस्ट ऑफ 60 to 70,000 उन्होंने सेव किया। मैंने देखिए और उससे ज्यादा सर्विस थी, वो उतना पुराना हो गया था, वो महीने में अगर एक विजिट करता तो लिखता था मैंने 3 विजिट कर ली, अगर वो दरवाजे पे भी चाय पी के चला गया, इतनी पुरानी दोस्ती हो गई। अब वो 3 विजिट करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना के वो देके जाता है कि सर ये डॉक्यूमेंट है हमारा, ये चीज है, अगर फ्यूचर में हम ये चाह रहे हैं कि ये चीजें चेंज हो, लेकिन फर्दर आपकी सजेशन हम डिस्कस करेंगे इस पे नेक्स्ट टाइम। जब कॉस्ट बचती है और मल्टी वेंडर्स पे हम जाते हैं, कंपैरेटिव हम बनाते हैं, जैसे आपने कहा ए बी सी, आप जहाँ ए नहीं जाते तो बी पे आते हैं, बी पे नहीं जाते तो सी पे आता है, तो एक बहुत अच्छा काम हो जाता है। जी बिल्कुल, कॉस्ट सेव हो जाती है। बिल्कुल यही मकसद है कि आप जो ट्रेडिशनली जिस तरह से परचेज कर रहे हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो यू नीड टू लुक इनटू दैट और प्रोसेसेस चेंज करें और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करें तो यू विल सेव। मैनेजमेंट इसलिए सपोर्ट नहीं करती है कि मैनेजमेंट ये बच्चा है और पहले से हम लोग ये करते आ रहे हैं, हम कोई बेवकूफ है क्या, हमें बेहतर पता है तुमसे ज्यादा। सप्लायर है वो हमारी जो क्राउड वजह से होता है, उसकी बॉटल्स पैकिंग होती है, उसमें 3-4 इशू आ रहे थे कि एक तो बॉटल्स की क्वालिटी इतनी खास नहीं थी, उस पर अगर हम प्रेशर से सील लगाते थे तो बॉटल ब्रेक हो जाती है, राइट, अगर ब्रेक नहीं भी हो उसके अंदर मटेरियल वो बाद में ब्रेक हो जाए, इसकी शेल्फ लाइफ नहीं थी। मैंने शेल्फ लाइफ पे वर्किंग करके बता दी, मैंने कहा भाई नहीं चाहिए कि आपको अगले दिन 20,000 बॉटल उतार दी, फिर 5 मिनट प्लांट में मौजूद था, रात में 12 बजे नहीं चाहिए। उनके मैनेजर का फोन आ गया, कहना आप कैसे मना कर रहे हैं, मैंने कहा आप आ जाइए, प्लांट में खड़ा हूं, प्लांट में खड़े हैं, मेरे मैनेजर का फोन आ गया, तुम क्यों मना कर रहे हो, मैं सर आपके प्लांट पे आया, मैं प्लांट में खड़ा हूं, आप देख लें क्वालिटी तो देखें, कल को कस्टमर के पास जाती है और रिटर्न आती है तो जवाब दे तो मैं चलिए लड़का बहुत बाहर भी हो सकता है। नहीं अच्छी बात है, गुड। बॉटल सभी तक पड़ी हुई है, यकीन करें आप, मैंने बोला मैं यूज नहीं करूंगा,
असल में हम लोगों को आदत होती है, ट्रेडिशनली जिस तरह चीज चल रही है उस पर किसी को कंप्लेन नहीं है तो उसको चुप करके चलने दो। खाम में नई चीज लाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, हम हाईलाइट होंगे। सुकून से नौकरी चल रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? हर कोई कंफर्ट में जोन में रहना चाहता है। ये भी इशू है, कल को आपको पकड़ने वाली पॉलिटिक्स की देगी। तो आप भी फंसेंगे कि भाई ये आप ही ज्यादा हीरो थे, ये तो होगा। आप नए को लेकर आएंगे तब भी आप फंसेंगे। नहीं, लेकिन कुछ बट आपको करना चाहिए, कुछ कंपनीज इनकरेज करती हैं, आई अंडरस्टैंड। ये इंट्रोड्यूस कर उसमें क्या करते हैं कि एक या दो वेंडर्स अपनी मोनोपोली क्रिएट ना करें, कि अपने पास इन्वेस्टमेंट रखते हैं जी, जी। कि मोनोपोली क्रिएट ना हो। जी बिल्कुल, वो जरूरी है। प्रोसेस चेंज करवाना, मैं बॉटल से प्लास्टिक पैकेट्स को हम करेंगे। नहीं अच्छी बात है भाई, ये तो करना चाहिए, जरूरी है। आपका रिसर्च पेपर ऐसे ही लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। कल की बात है कि सॉरी कल की सर बात है कि हमारा डिपार्टमेंट एक लिमिटेड, तो मैंने वहाँ के 2 बंदे फिक्स किए हुए मेंटेनेंस के। प्रॉब्लम आ गई ना तो मेरा सीनियर तो ठीक है चलता रहा, 3 महीने हो गए। तो एक मैंने चलो रिकॉर्ड निकालो, 3 महीने में किया क्या है हमने, वर्क ऑर्डर निकालो कितना काम किया सर। तो ब्लैक में काम करें, काला माल आ रहा है काम करें, काला माल आ रहा है तो सुना तो चौथी बात सुना मैंने, काला माल क्या है? मतलब मेरी मेंटेनेंस बढ़ी है, जब आप प्रोडक्शन लॉस होती है तो आप ईमेल कर देते हो कि भाई मेंटेनेंस की वजह से मेरे इतने पीसेस कम बने, फिर वो सीईओ के पास रिपोर्ट जाती है, मेरी प्रोफाइल खराब होती है। ऑपरेशन मैनेजर को बिठाया और प्रोडक्शन मैंने कहा यार ये काला माल क्या है? पहले तो मुझे किसी वाले को मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड निकाल, मुझे पेपर दे दे स्टैंडर्ड क्या है नहीं होता। 5 मिनट के अंदर मसला सॉल्व हो गया सर जी। 15 दिसंबर तक मटेरियल चलने दो, इसके बाद सही है। अभी 5 मिनट इन चीजों में हम बहुत फंसते हैं। लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली जो है आपको कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, जैसे शेख साहब ने किया। ठीक है, आपने किया कंप्रोमाइज ना कि भाई ठीक है 15 कभी कभी करना भी पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको क्षण लेना चाहिए। मसला तब है कि हमारे जैसे बुड्ढे क्रिएट करते हैं। वो क्यों क्रिएट करते हैं? कहते हैं मैं 30 साल से इस प्लांट को देख रहा हूँ और मैं इसके एक ईंट जब लगी थी तो मेरे सामने लगी थी, मैं इसके एक कील से वाकिफ हूँ। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे मेरा तजुर्बा है। हाँ, तुमको तो अभी दूध पीते बच्चे हो, तुम्हें क्या पता इन चीजों का। तो वो लोग चेंज नहीं लाने देते। एग्जैक्टली यही है कि मैंने बोला ना प्रोसेस खत्म कर देते हैं। हम 500 बॉटल्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम 1000 पे आ जाएंगे। वो परेशान होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला मैं प्रोसेस ही चेंज कर रहा हूँ। कैसे? मैंने बता दिया ना, हमारे पास हीटर होगा ना, रिफिल होगी ना, बॉटल्स होगी, किसमें करोगे? मैं प्लास्टिक शॉपर्स में करूंगा। अब वो परेशान हो गए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कर क्या रहा है, हाथ पाँव मार रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कि उनकी जो ग्रिप थी वो ही तोड़ दी मैंने। हाँ बिल्कुल। जो पुराने लोग होते हैं ना, जो 20 साल 10 साल 15 साल तक काम कर रहे होते हैं, वो एक तरह से मोनोपलाइज कर देते हैं। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन चीज़ों को कंटिन्यूटी के साथ ब्रेक करते रहते हैं, लोगों को इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बट यस ऑफ कोर्स एज ए प्रोफेशनल यू नीड टू फाइट। ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद उसको शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? तुम थक गई ना इतनी देर में? हैं? तुम्हारा नाम हरीम है ना? तो हरीमा क्या? हलीमा सादिया। तो हलीमा तुम कल कहाँ गायब थी भाई? सर मेरा नेट बहुत मसला कर रहा था और ऊपर से अच्छा। मेहमान के आ गए थे। नहीं भाई, सारे हमारे पढ़ाने के टाइम पे सारे काम हो रहे थे।